Yeah, there is hope for the living. जो है उसके लिए आशा है। Wow, Ecclesiastes chapter 9 verse 4. सभोपदेशक 9 अध्याय वचन 4। There is hope for the living. जो जीवित है उसके लिए आशा है। Yeah, Psalm 115 verse 17. भजन संहिता 115 अध्याय वचन 17। So if you have hope, तो यदि आपके पास आशा है, you will definitely praise the Lord. निश्चित रूप से प्रभु की स्तुति जरूर करोगे। Yeah. Psalm 115 verse 17. भजन संहिता 115 अध्याय वचन 17। Yeah, it says beautifully, the dead cannot praise the Lord. वचन कहते हैं मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। Dead cannot sing praises to the Lord. तो मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं गा सकते। Yeah. Now they are quiet. क्योंकि वो शांत है अभी। मरा हुआ आदमी कभी कुछ बोलता नहीं, पता है, शांत हो जाता है। लेकिन अगला वचन verse 18, वचन 18। beautiful, but लेकिन we can praise the Lord स्तुति कर सकते हैं। now भी and forever. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Jeremiah 51 verse 44. यिर्मयाह 51 अध्याय वचन 44। And God is saying to Israel, और प्रभु इज़राइल से कह रहे हैं, I will punish the spirit called Baal. इस बेल नाम की आत्मा को मैं दंड दूंगा। Yeah. And what he has swallowed from your life, और तेरे जीवन से जो उसने निगला है, I will see that he will vomit all of it outside. मैं देखूंगा कि वो सब बाहर उगल दे। Yeah. You know, in our journey also, हमारे भी यात्रा में there are some things the enemy has just swallowed it. कुछ चीजें हैं जो शत्रु ने निगल ली है। Yeah. It just swallowed. उसने निगल ली है। Maybe your joy. शायद आपका आनंद। See, joy, na, आनंद जो है is very important. वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आनंदित रहोगे ना प्रभु में, तो आपको ना wrinkles भी कम होंगे, झुर्रियां भी कम आएंगी, तो आपका जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा। I gave you a very good solution. मैंने बहुत अच्छा सुझाव आपको दिया। Marsha is writing, Pastor, I should take this medicine. Joyful person is a very strong person. आनंदित व्यक्ति बहुत मजबूत व्यक्ति होता है। Because Bible says the joy of the Lord is my strength. क्योंकि बाइबल कहते परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। Yeah. Okay, so maybe some of us, we have just lost our joy. शायद हम में से कुछ लोगों ने अपना आनंद खो दिया है। Yeah, maybe somebody has just swallowed our joy. शायद किसी ने हमारा आनंद निगल लिया है। Yeah, maybe some of your peace has been swallowed. शायद आप में से कुछ लोगों की शांति निगल ली गई है। Yeah, it's gone. वो चली गई। Yeah, now you have no problem in the mind, but you have lost. You feel as if you're going to lose your mind now. अभी आपके मन में कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपके मन का काबू खो दोगे। Yeah, because something has been lost. क्योंकि कुछ तो चुराया गया है। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, don't worry. चिंता मत कर। I will deal with the spirit called Baal. इस बेल नामक आत्मा के साथ मैं अभी कार्य करूंगा। Yeah, I will deal with every spirit which has swallowed things in your life. तेरे जीवन में हर एक प्रकार की आत्मा जिसने चीजें निगल कर रखी है, उनके खिलाफ मैं कार्य करूंगा। Yeah. समझो आपके घर में you have a hen. आपके घर में मुर्गी है। And suppose you have a earring which costs 10 lakh rupees. मान लो आपके पास इयररिंग है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए। Ring है। ring. And your hen eats the ring. और आपकी मुर्गी उस रिंग को खा लेती है। What you will do? तो आप क्या करोगे? Tell me, you will keep the hen? What you will do? आप क्या करोगे? You'll kill it, na? आप मुर्गी को मार डालोगे। Why? क्यों? Because she has swallowed your ring. क्योंकि उसने आपकी अंगूठी को निगल लिया है। There are spirits कुछ आत्माएं हैं who have swallowed a lot of good things which belong to you. जिन्होंने आपकी बहुत सारी भली बातें जो आपकी है उसे निगला है। Yeah, and the Lord says, okay. Actually, na, God also likes to slap. प्रभु को थप्पड़ मारना भी अच्छा लगता है। Yeah, मैंने बोला. Okay. Now Jesus said you should not slap anybody. यीशु ने कहा कि आपने किसी को चाटा नहीं मारना है। Yeah, but he said if somebody slaps you, you give your
other cheek, right? लेकिन यीशु ने कहा यदि कोई तुम्हें चाटा मारे तो दूसरा भी गाल दो। Yeah. So how is this, what he has swallowed, it is going to come out? How is it going to come out? तो जो भी उसने निगला हुआ है बाहर कैसे आने वाला है? Yeah. कुछ नहीं, simple. God will give him one slap. प्रभु उसे एक चाटा लगाएंगे। One slap is enough. एक चाटा ही काफी है। Yeah. More than enough. जरूरत से ज्यादा काफी हो। Yeah. Everything will come out. सब कुछ बाहर आ जाएगा। Psalm 3:7. भजन संहिता 3 अध्याय वचन 7 NLT. NLT भाषांतर। Arise, Lord. प्रभु उठ के खड़े हो जाओ। When will God arise? प्रभु कब उठ के खड़े होंगे? When you thank God. जब आप प्रभु को धन्यवाद दोगे। When will God arise? प्रभु कब उठ के खड़े होंगे? When you will praise God. जब आप प्रभु की स्तुति करोगे। बहुत सिंपल होता है। So when I'm saying कौन है, तो जब मैं कह रहा हूं कौन है, you should enjoy the Lord. Right? आपने प्रभु का आनंद लेना है। ऐसा मत सोचो अभी कब होगा, मैं पास्टर का ये गाना कब खत्म होगा। मेरा गाना खत्म होगा लेकिन तू खत्म हो रहा है, तू खत्म हो रहा है। Because the person that we are praising over here, he is not some man, he is Almighty God. क्योंकि जिस व्यक्ति की हम जो स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर वो कोई मनुष्य नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Yeah. Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Yeah. So you should know how to make God rise up. तो आपने जानना है कि प्रभु को कैसे उठ के खड़ा कराना है। Yeah, कोई आमेन नहीं बोल। You should know it. आपको ये पता होना चाहिए। If you don't know, learn. यदि आपको पता नहीं है तो सीखो। हाँ, सीखो। Amen. Are you okay? आप सब ठीक हो? So, when God rises up, जब प्रभु उठ के खड़े हो जाते हैं, you just tell God, God, आप प्रभु से कहो प्रभु help me. मेरी मदद करो। That's called prayer. उसे प्रार्थना कहते हैं। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Telling God, प्रभु से कहना God help me. प्रभु मेरी मदद करो, Rescue me, my God. मेरे प्रभु मुझे छुड़ाओ। And what should you do, Lord? और आपने क्या करना है प्रभु? Slap all my enemies. मेरे सारे शत्रुओं को चाटा मारो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ starting today, आज से उसकी शुरुआत होती है। Almighty God will slap your enemies in Jesus' name. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके शत्रुओं को चाटा मारेगा यीशु के महान नाम में। Suppose somebody is chewing gum and you slap that fellow. मान लो कोई च्युइंगम चबा रहा है और आप उस व्यक्ति को चाटा मारो, क्या होता है पता है? वो chewing gum तेरे मुंह पे आएगा। वैसा जब प्रभु चाटा देता है ना, प्रभु ने तुझे नहीं बोला चाटा मारना, याद में रखना। प्रभु ने तुझे नहीं बोला है, प्रभु ने कहा वो मेरा काम है। आमीन। और यहाँ पे चाटा कोई आदमी को नहीं दे रहा है, प्रभु आत्माओं को दे रहा है। आमीन। Come on. I think you should celebrate the Lord, bless the Lord, give him glory, give him honor. मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु का उत्सव मनाना चाहिए, प्रभु का आनंद लेना चाहिए, उसे महिमा और आदर देना चाहिए। Yeah. So when he slaps, तो जब वो चाटा मारते हैं, what is in his mouth? जो भी उसके मुंह में भरा है It will come out. वो बाहर आएगा। What you have lost, जो भी आपने गवाया है it's coming back in Jesus' mighty name. वो वापस लौट के आ रहा है यीशु के महान नाम में। Yeah. Number 2. दूसरा नंबर, One is you're going to get a lot of things which are lost. पहली बात जो भी चीजें आपने खोई है वो आप बहुत सारी चीजें आपको वापस मिलने वाली है। There are a lot of people talking about you. बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपने किसी को भी तकलीफ नहीं दिया ना, तो भी लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। Whether you like it or not, people are talking right now. आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन लोग आपके बारे में बात करते हैं। करते नहीं, कर रहे हैं। Present tense. Yeah. कुछ अच्छे और कुछ बुरे, Yeah. और वो बुरे जो है वो झूठ है। यस, They are lies. वो झूठ है। So God is saying, तो प्रभु कह रहे हैं don't worry. चिंता मत कर, I'm going to do something for you today. मैं तेरे लिए आज कुछ करने वाला हूँ। Today I'm going to do. आज मैं कुछ करने वाला हूँ। What you are going to do, Lord? प्रभु आप क्या करने वाले हो? प्रभु कह रहा हूं उनका जो दांत है ना वो मैं तोड़ने वाला हूं। आमीन। अभी आप किसी का दांत मत जाके तोड़ो। हमें प्रभु ने बोला किसी के, इनफैक्ट प्रभु ने बोला जो तुझे तकलीफ देता ना उसके लिए प्रार्थना कर। तेरा काम नहीं होता है। See, you have to learn. आपने सीखना है।
When people talk about you ना, जब लोग आपके बारे में बात करते हैं ना, yeah, they're putting a color on you. वो आपके ऊपर रंग लगा रहे हैं। You're being spoiled. आपको दूषित किया जा रहा है, You're being defiled. आपको अशुद्ध बनाया जा रहा है, Your testimony is going down. आपकी गवाही नीचे की ओर जा रही है, In your workplace, आपके काम के जगह पर it's going वो down. नीचे जा रही है, In the market, मार्केट में it's going वो down. नीचे जा रही है, In your neighborhood, आपके अड़ोस पड़ोस में it's going वो down. नीचे जा रही है। But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे, don't worry, चिंता मत कर, I'll do something for you. मैं कुछ करूंगा तेरे लिए। The word teeth over there means influence. वहां पर जो शब्द है दांत, उसका अर्थ है प्रभाव। हाँ, और प्रभु कह रहा मैं उसके प्रभाव को तोड़ने वाला हूँ। आमीन। यीशु के महान और शक्तिमान नाम में I'm going to break the power of his influence. उसके प्रभाव के सामर्थ को मैं तोड़ने वाला हूँ। Yeah. आमीन। वो आवाज बंद होने वाले हैं, यस, बंद होने वाले। अब जब आप बाहर जाओगे ना मार्केट में, लोग आपको देख के स्माइल करेंगे। कोई आमीन नहीं बोल रहा क्योंकि आवाज बंद हो गए। आमीन। एक आमीन आया है, आवाज बंद हो गया है तो लोग स्माइल करेंगे। आमीन। Because now those voices are shut. क्योंकि अभी आवाजें बंद हो चुकी है। Yeah. Have you ever thought क्या आपने कभी सोचा है why people like you? लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? नहीं पास्टर, मैं बहुत हैंडसम हूँ। मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। बहुत हैंडसम लोग हैं, उनसे लोग कोसों दूर रहते हैं। Now listen very carefully. अभी बहुत ध्यान से सुनना। If people begin to like you, यदि लोग आपको पसंद करने लग जाए, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God has broken some teeth. प्रभु ने कुछ दांत तोड़े हैं। Some teeth have been broken in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में कुछ दांत तोड़े गए हैं। Yeah. Some of you are working in offices, ना? आप में से कुछ लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, Yeah. अभी आपका इंक्रीमेंट का समय आ रहा है। पता है आपके ऑफिस में बहुत बात चालू है इस वक्त, और आपके खिलाफ बात चालू है। लेकिन प्रभु कह रहा है ये साल मैं कुछ करने वाला, मैं दांत तोड़ने वाला हूं। आमीन। I'm going to break their teeth so that their influence is destroyed in Jesus' mighty name. मैं उनके दांत तोड़ने वाला हूं ताकि उनका प्रभाव नाश हो जाए यीशु के महान नाम में। Some are looking at me. कुछ लोग मेरी ओर देख रहे हैं। चलो अभी जो इनविटेशन नहीं आते थे ना, वो आने शुरू होने वाला है। आमीन। आमीन। जो इनविटेशन नहीं आते थे अब आने वाला है, जो दरवाजा खुलता नहीं था अब खुलने वाला है, क्योंकि वो आवाज बंद होने वाली है। जो तेरे खिलाफ आवाज उठ रही थी वो बंद होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। नंबर 3, तीसरा नंबर, सम ऑफ अस वी हैव फियर्स। हम में से कुछ लोगों के अंदर डर है। क्या डर है पता है? जो तकलीफ मेरे जीवन में हुआ ना, वो शायद वापस आने वाला है। कोई भी आमीन नहीं बोला। Some of us we have this fear. हम में से कुछ लोगों के अंदर ये डर है। पता क्या डर? कि जो मेरे जीवन में हुआ ना, वो शायद वापस आने वाला है। It's gonna come back. वो वापस आने वाला है। We have this fear and it keeps killing us inside. ये डर हमारे अंदर है और अंदर से हमें बार बार मारते रहता है। Yeah, it keeps killing. It keeps working overtime. वो मारते रहता है, जरूरत से ज्यादा काम करते रहता है। Yeah, so inside I am actually slowly dying अंदर से मैं हकीकत में धीरे धीरे मर रहा हूँ, because there are some things which have happened in my life क्योंकि ऐसी कुछ चीजें मेरे जीवन में हुई है and I feel again it's going to happen. और मुझे ऐसा लगता है फिर से वो होने वाला है। But I have some good news for you. लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ खुश खबर है। Yeah. Nahum chapter 1 verse 9. नहूम 1:9, Yeah. Trouble will not come a second time. तकलीफ दोबारा वापस नहीं आएगी। Yeah. What is God trying to remove from your head? Do you know? प्रभु आपके दिमाग से क्या निकालने की कोशिश कर रहे पता है? Fear. डर। Let me say it again. फिर से कहने दो, What is God trying to pull out of your head? प्रभु आपके दिमाग से क्या निकाल करने की कोशिश कर रहे हैं? It's called fear. उसे डर कहते हैं, Because fear will paralyze us. क्योंकि डर हमें अपंग बनाता है।
It doesn't allow us to take step. वो हमें इजाजत नहीं देता कदम आगे बढ़ाने के लिए। So God is saying, तो प्रभु कह रहे हैं believe me. मुझ पर विश्वास कर। One amen. एक आमेन आया। Believe me. मुझ पर विश्वास कर। Believe me. मुझ पर विश्वास कर। Trouble will not come a second time. तकलीफ दोबारा वापस लौट के नहीं आएगी। Maybe you failed in your business. शायद आपके व्यापार में आप असफल हुए अभी वापस चालू हुआ है. And you have this fear it will fall. और आपके अंदर एक डर है फिर से व्यापार बर्बाद होएगा। God is saying, प्रभु कह रहे that trouble which came, now it will not come back again. वो तकलीफ जो आई थी अभी वापस दोबारा लौट के नहीं आएगी। That one will not come back again. वो तकलीफ वापस नहीं आएगी। You're with me? आप मेरे साथ हो? Yeah, maybe you encountered a major failure शायद आप बहुत बड़ी असफलता का आपने सामना किया and you feel that ये वापस लग रहा है करके और आपको मौसम वैसा लग रहा है. और आपको ऐसा लग रहा है कि वातावरण ऐसा हो गया कि वापस वो तकलीफ आ रही है। God is saying, प्रभु कह रहे हैं trouble will not come a second time. वो तकलीफ दोबारा लौटकर नहीं आएगी। नहीं आएगा यीशु के. आमेन आमेन। Nahum 1 and verse 9 will be the verse for your whole month. नहूम 1 अध्याय वचन 9 पूरे महीने के लिए आपके लिए वचन होगा। Take that verse and declare it. इस वचन को लीजिए और घोषणा कीजिए। I can't declare it for you. मैं आपके लिए घोषणा नहीं कर सकता। I can declare it for myself. मैं अपने खुद के लिए घोषणा कर सकता हूँ। As a pastor, I will declare it over you. पासवान होने के नाते मैं आप पर घोषणा करता हूँ। But you should rise up. लेकिन आपने उठ के खड़ा होना है। Declare it और घोषणा करना है every day. हर दिन That trouble will not come a second time. कि तकलीफ दोबारा लौट के नहीं आएगी। जो गया वो गया यीशु के नाम में. आमेन। Psalm 16 verse 5. वचन संहिता 16 में 5। Lord, you are all that I have. प्रभु सिर्फ आप ही हो जो मेरे लिए सब कुछ हो। You give me all I need. जो भी मुझे चाहिए सब आप देते हो। And the best thing is, और सबसे उत्तम बात my future is in your hands, O Lord. मेरा भविष्य आपके हाथों में है प्रभु। My future is in your hands. मेरा भविष्य आपके हाथों में है। So you can write over there. You can trust the Lord for your future. तो आप वहां पर लिख कर लीजिए आपके भविष्य के लिए आप प्रभु पर भरोसा कर सकते Yeah, हो because it's in the hand of God. क्योंकि वो प्रभु के हाथ में है। This year, इस साल God is very adamant to make you fruitful. प्रभु बहुत उत्सुक है आपको फलवंत बनाने के लिए। Utsuk naivit. Utsuk means excited. He's not excited. He's very adamant. That means he has decided to help you. इसका अर्थ उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो करना है आपके लिए। Yeah. God wants to. प्रभु करना चाहते हैं। Yeah. To make you fruitful. आपको फलवंत बनाने के लिए। Yeah. And not fruitful, but doubly fruitful. सिर्फ फलवंत नहीं लेकिन दुगना फलवंत। Yeah. And I believe it. और मैं विश्वास करता हूँ। I don't know you believe it. मुझे नहीं पता आप विश्वास करते हो कि नहीं। If you believe it, यदि आप विश्वास करते हो you say it. तो आप कहो। You can say an amen by. आप आमीन कह सकते हो। Yeah. Now, that's why many of you are in a journey. इसलिए आप में से बहुत लोग यात्रा में हो। And in that journey, God is working on you. और उस यात्रा में प्रभु आपके ऊपर काम कर रहे हैं। Yeah. Because God's mind is very clear. I somehow want to make my child blessed, become a blessing, क्योंकि so प्रभु that my name is honored. क्योंकि प्रभु के मन में पूरी तरह स्पष्ट है मैं मेरे बच्चे को आशीषित करना चाहता हूँ, आशीष का कारण बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे नाम को आदर मिले। Yeah. Is very clear in his mind. अपने मन में बहुत स्पष्ट है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yeah. But to become doubly fruitful, लेकिन दुगने रूप से फलवंत होने के लिए you need to have something in your life very clear. तो आपके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ चीज होनी चाहिए। Yeah. And I will only give you one word. और एक ही शब्द दूंगा मैं। And that word is called sacrifice. और उस शब्द को कहते हैं बलिदान। John 12. यूहन्ना 12वां अध्याय। Yeah. And verse 24. वचन 24। Let's take verse 23. पहले वचन 23 देखेंगे। Jesus answered, यीशु ने उत्तर दिया, the hour has come. वो क्षण आ रहा है
आ रहा है आया है वो बेटा, आ गया है that the Son of God, that is Jesus, should be glorified. कि परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु उसकी महिमा की जाए। Okay, I want you to understand. मैं चाहता हूं आप इस बात को समझिए, In everybody's life, हर एक के जीवन में an hour comes समय आता है where God wants to exalt people. जहां प्रभु लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। 4 आमेन आया है। It may not be every time, but there's a period in your journey. लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी यात्रा में ऐसा एक समय, एक क्षण आता है Yeah, for which you have to be ready. जिसके लिए आपने तैयार रहना है। 1 amen. And here it's talking about Jesus, और यहाँ पर यीशु के विषय में बात हो रही है and he is ready. और वो तैयार है। बाजू वाले से बोलना बहुत तैयारी चालू है तुझ पर. The whole heaven is working on you पूरा स्वर्ग आपके ऊपर काम कर रहा है for that hour. उस क्षण के लिए You can be exalted. जहां पर आपको ऊंचा उठाया जाए। Yeah. But I just want to tell you, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, in the kingdom of God there is a principle. परमेश्वर के राज्य में सिद्धांत है। उठाने के पहले ना तुझे नीचे होना पड़ता है। आमीन। 4 आमेन बोल रहे हो। Jesus left heaven, यीशु ने स्वर्ग को छोड़ा, came down, नीचे आए, then went on the cross, फिर कलवरी के क्रूस पर गए, then went into the ground, फिर जमीन के अंदर गए, then on the 3rd day, फिर तीसरे दिन like a lion, सिंह के जैसे he overcame death. मृत्यु पर उन्होंने जय। Now, अभी seated at the right hand of God. परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर बैठे हैं। Yeah. You're with me. आप मेरे साथ हो। लेकिन बाजू वाले को बोलना यात्रा था, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर सीधा ऊपर. आमीन। Now when he comes, अभी जब वो आएंगे, now he will come as a king. अभी वो राजा के जैसे आएंगे। Now verse 24. वचन 24। Now, how will this exaltation take place? ये ऊंचा उठाया जाना कैसे होने वाला है? In the life of Jesus and in your life. यीशु के जीवन में और आपके जीवन में। Here the Bible says, यहाँ पर बाइबल कहती है, you're like a seed. आप बीज के समान हो। तो आप बीज के साथ क्या कर सकते हो? एक तो खा सकते हो चपाती बना के, या रख सकते हो, या एक बुद्धिमान किसान बनकर बो सकते हो। 1 आमेन, 2 आमेन। अगर खाओगे तो बीज खत्म, रखोगे तो शायद आगे कुछ होगा, लेकिन बोगे थोड़े दिन में। Now, Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, I am a seed. मैं बीज हूँ। अच्छा, तो यीशु बीज थे, तो फल क्या है? यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, ये सब, आमीन, आमीन, ये सब फल है। आमीन। ऑल और लाखों करोड़ों 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 प्रभु में जो आए हैं वो फल है। आमीन। So he became a seed. तो बीज बने। बीज को गिरना पड़ता है, वहां पे लिखा है, Yeah. फिर उसे मरना पड़ता है, फिर उसे गाड़ा जाना पड़ता है, और फिर फल आता है। यस। सब लोग मेरे साथ में हो ना? गिरना है, मरना है, और फिर फल आने वाला है। आमीन। बाजू वाले को बोलना, गिरना है, मरना है, फल आना है। बाजू वाले को बोलना, यही होने वाला है। In December, some people will say, दिसंबर में कुछ लोग कहेंगे, ये जो पास्टर ने लगाया नहीं, ये सब झुट्टा है। झुट्टा नहीं, तूने वो जो बीज है ना, उसको रगड़ रगड़ के रोटी बना के खा लिया, Yes. शायद केक बना के खाया, और थोड़ा सा ऊपर क्या उसको ना क्रीम वगैरह लगा के, बस। या कोई कोई लोगों का सीड ऐसा ही बाजू में पड़ा हुआ है, बोल रहे हो प्रभु मुझे हाथ नहीं लगाने का, तुझे हाथ नहीं लगाने। प्रभु बोल रहे मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, तू बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया, मैं कैसा तुझे हाथ लगाऊंगा? विदाउट परमिशन तो मैं हाथ नहीं लगाता हूं। याद में रखना वो राजा है। आमीन। याद में रखना, याद में रखना वो राजा है। आमीन। जब वो कुछ कहता है ना, सुन लो और कर लो, आमीन। शायद वो अगले बार तेरे पास आएगा भी नहीं। आमीन। He is not somebody just walking on the street.
वैसे ही कोई व्यक्ति रास्ते पर जो चलता है वैसे नहीं है, It's this humility उसकी नम्रता है that he comes down from heaven. कि वो स्वर्ग से नीचे आते हैं। It's his humility. ये उनकी नम्रता है। He went on the cross of Calvary. वो कलवरी के क्रूस पर गए। It's his humility ये उनकी नम्रता है that he walks with us. कि वो हमारे साथ चलते हैं। Still, लेकिन फिर भी he is the King of Kings, the Lord of Lords. वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है। उससे ना नहीं कहना, आमीन। गलती कर दोगे, ना मत कहना। बाजू वाले को बोलना, प्रभु को ना मत कहना बाबा। Alright. अच्छा, फल आने वाला है क्या? यस, पक्का आने वाला है। आमीन। In fact, this whole next 10 years, ये अगले 10 साल I am believing मैं विश्वास कर रहा हूँ, fruit. It's going to be a decade of fruitfulness. फल 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 फल, ऐसा वंश होने वाला है फलों का। Yeah, with me ना? आप मेरे साथ हो? अभी आप आराम से बैठे हो, ऐसा एक समय आने वाला है, तुझे भागते आना पड़ेगा चेयर के लिए। वाह, You have to run. You have to come running for the आपको दौड़ के आना होगा। house of God. प्रभु के घर में दौड़ के आना होगा, Just get a chair. कुर्सी पर बैठने के लिए। Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता Because there are many people over here who are going to become a seed in the hand of God, and they are going to bring a great harvest into the house of God. क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु के हाथ में बीज बनेंगे और प्रभु के घर के लिए बहुत सारे फलों को लेकर आएंगे। Yeah. Amen. Okay. Now, in this whole journey from falling, dying, and much fruit, और ये पूरी यात्रा में गिरना, मरना और बहुत सारे फलों में yeah, 3 things will happen. 3 चीजें होंगी। Number 1, पहला, a seed has to fall. बीज ने गिरना ही है। और बीज तू है। आमीन। तो आमेन नहीं बोल रहा है। You are the seed. आप वो बीज हो। बाजू वाले को बोलना, आप हो, आप हो, आप हो। और जो देख नहीं रहा ना, उसको हिलाओ और बोलो, आप हो। You are that one. आप वो बीज हो। Can I hear an amen there? आमीन। You are that one. आप वो बीज हो And you have to fall. और आपने गिरना है। Okay, fall means. गिरने का मतलब, हाँ, सब लोग मेरे साथ में हो ना? एक ऐसा समय रहता है हमारे जीवन में जब लोग हमें means God hides you. प्रभु आपसे छुप जाते हैं। नहीं, प्रभु आपको छुपा देते हैं। you become an unknown person. आप अनजाने व्यक्ति बन जाते हो। शायद आप पहले फेमस थे, लेकिन अभी एक आमेन आया है, 2, 4 आया है, 5 आया है। Everybody has to come through that. सभी को उसमें से आना पड़ता है। और अगर आप गए नहीं हो तो वेलकम, तुमसा आहे, नंबर आहे। स्वागत है, आपका नंबर है। आमेन ने बोला, मेरा हो गया है आमीन। या होने पर है, अभी चालू है, मेरा चालू है। It's a season where you are, unknown. यहाँ पर ऐसा समय है, ऐसा मौसम है जहाँ पर आप अनजाने हो। God will hide you. प्रभु आपको छुपाएंगे। Nobody knows you. कोई आपको जानता ही नहीं। You are nobody. आप कोई भी नहीं हो। बाजू वाले को बोलना, ये सीजन अच्छा होता है। वो भी कोई आमेन नहीं बोल रहा है, देखा? आमीन। No pastor, I want to be a hero. नहीं पास्टर, मैं तो हीरो बनना चाहता हूँ। Yeah, you will become hero. आप बनोगे हीरो। लेकिन तुम्हारा जो अंदर हवा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो हवा को प्रभु निकालना चाहता है। आमीन। 1 आमेन आया है, 2 आया है, 3 आया है। From self confidence you will become no confidence. जो खुद पर आत्मविश्वास से बिना आत्मविश्वास के तुम हो जाओगे। हाँ, पूरा हवा निकला। Then God will have to put God confidence in you. तो प्रभु का आत्मविश्वास आपके अपने अंदर डालना पड़ेगा। You are ready. उसके बाद आप तैयार हो। Okay, now this is a good season. ये अच्छा मौसम है। But please write, in this season there will be a lot of rejection. लेकिन लिख कर लो, इस मौसम में बहुत सारा तिरस्कार होगा। Please write, please. लिख कर लीजिए। हाँ, rejection होगा, तिरस्कार होगा, loneliness होगा, अकेलापन होगा, रोना होगा, रोना होगा, और एक दो बहुत सारा आंसू होगा, बहुत सारे आंसू होगा, और एक दो वर्ड दर्द बहुत होगा, दर्द भी बहुत होगा। पास्टर बस आमेन बोलो ना, हम लोग घर जाएंगे। आप घर भी जाओगे तो ये होने वाला है, तो सुन लो ना ताकि आप रेडी हो। आमीन। Come on.
See, if you know you are in a process and in the end fruit will come, then you will rejoice, na? यदि आपको पता है आप प्रक्रिया में और अंत में फल आएगा तो आप आनंद नहीं मनाओगे। So in that pain you will still say, I know one day fruit is going to come. तो उस दर्द में आप फिर भी कहोगे मैं जानता हूं एक दिन फल जरूर आएगा, Because I am a seed. क्योंकि मैं बीज हूं। Amen। Amen. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? Yeah, but don't worry. लेकिन चिंता मत करो, When this happens, God will hide you. जब ये होगा प्रभु आपको छुपाएंगे। 4 amen हुआ। Isaiah 49 verse 2. यशाया 49 अध्याय वचन 2। He has kept me safely hidden. उन्होंने मुझे सुरक्षित रखा है छुपाकर। Yeah, दर्द में वो हमें छुपाएगा। Amen। तिरस्कार में छुपाएगा। Loneliness में छुपाएगा। Amen। He will protect you. He will keep you. वो आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको छुपा के रखेंगे। Yeah. And maybe you may lose some things. शायद कुछ चीजों को आप खो भी दोगे, Yeah, you lose some things. कुछ चीजों को आप खो दोगे। Okay, let me give you one example. एक उदाहरण देने दो। Moses. मूसा कितने साल जिया वो? 123. 120. 120 साल, 40 साल महल में, 40 साल मरुस्थल में, यानी डेजर्ट में, यानी राजस्थान जैसे जगह में। ओके, और 40 साल वापस प्रभु ने फल आना शुरू किया। 40 साल फल आया। Amen। कितना? 40 40 40। Amen। 40 साल सब कुछ है उसके पास, सब कुछ, सब कुछ, वाओ। सब कुछ, सब कुछ। अगला राजा वही था, अगला राजा वही था, लेकिन यहूदी लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया। Yeah. Let me give you a verse. I think it will help you and then we'll go ahead. Acts chapter 7 verse 35. प्रेरित 7 में 35। The same Moses that the people rejected. वही मूसा जिसका तिरस्कार लोगों ने किया था। हाँ, लोगों ने तिरस्कार किया। फेरो उसके पीछे लगा और ये दौड़े दौड़े कहां गया पता है? मिदियन गया। और मिदियन में जो व्यक्ति राजभवन में बढ़ रहा है, राजमहल में बढ़ रहा है, नाउ ही इज इन द डेजर्ट। अभी वो मरुस्थल में है। एंड नाउ यू नो व्हाट ही इज डूइंग? अभी पता है वो क्या कर रहा है? शेपर्ड। चरवा बना है। यहां से गिरा यहां। कोई आमेन नहीं बोल रहे हो? बाजू वाले बोलना, गिरना कभी कभी अच्छा होता है। बोलो 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 बोलो, गिरना अच्छा होता है, लेकिन आपके मूर्खता के लिए गिरना मत। लेकिन प्रभु के यात्रा में एक गिरना होने वाला है। Amen। There will be a fall. गिरना होने वाला है। Did Moses fall? क्या मूसा गिरा? Yeah. हाँ। Was he a seed? क्या वो बीज था? Yeah. हाँ। जो महल में 40 साल पला गया, अभी बकरी लोग उसके साथ हेलो, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। एंड फॉर 40 years he did it. और 40 साल उसने ये किया। जब वहां से आदमी नीचे गिरता है ना, जितना घमंड है ना वो सब टूटता है। Amen। कोई कुछ बोल नहीं रहा है बाबा। All your pride will be broken in Jesus' mighty name. आपका सारा घमंड टूट जाएगा यीशु के महान नाम में। Moses could have said, "Where are you, God? Where are you, God?" मूसा कह सकता था प्रभु आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? God would have said, "You are my seed." प्रभु ने कहा होता तू मेरा बीज है। Yeah, you just fell down, तू अभी गिरा है, but I am with you. लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। बाजू वाले को बोलना, प्रभु तेरे साथ है, don't worry, he is with you. बाजू वाले को कहना प्रभु आपके साथ है, चिंता मत कर। Yeah. Now let me just say this. अभी मुझे ये कहने दो। Before God gives you an acceptance with a larger crowd, बड़ी भीड़ के द्वारा आपको अपनानापन देने के पहले God will make you taste rejection. प्रभु आपको तिरस्कार चखने देंगे। Amen। Before he gives you big acceptance, बड़ा अपनानापन देने के पहले you will have to taste the cup of rejection. आपको जो है तिरस्कार का प्याला चखना पड़ेगा। Yes. And if you do it, और यदि आप करोगे, who knows? किसे पता? Your life will be double fruitful in the mighty name of Jesus. आपका जीवन दुगने फल से भर जाएगा यीशु के महान नाम में।
And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. Number two. दूसरा नंबर, Number two. दूसरा Yeah. Number two, the seed has to die. दूसरा नंबर, बीज ने मरना जरूरी है। क्या होना है? अरे थोड़ा एसी बंद कर, सबको मैं देख रहा हूँ ऐसे बैठे हुए, मुझे भी आपको ऐसा बैठे हुए देखा ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने भी। आराम से बेटा, आराम से, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसा करूं, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं ना और लोग अगर ऐसे बैठे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं अब बस हो गया, बंद करो। हाँ, तो प्लीज ऐसा मत बैठो, आराम से बैठो। हाँ, तो थोड़ा आराम से बैठा तो मुझे भी लगता है हाँ थोड़ा आगे बात करेंगे करके। आगे बात कर सकते हैं क्या? ओके, नंबर टू, दूसरा नंबर, द सीड हैज टू डाई। बीज ने मरना जरूरी है। Yeah. मरना जरूर है। अभी सुनो, जब रिजेक्शन होता है ना जब तिरस्कार होता है लोगों से, लोगों से, उस समय ना, अभी अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, उस समय सिर्फ हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन वो दर्द ना, वो दर्द ने हमें यीशु के नजदीक लेके जाना है। आमेन। Did you hear that? क्या आपने सुना? I want to say it again. मैं फिर से कहना चाहता हूँ, When you are in that pain, जब उस दर्द में आप होते हो, pain should not take you away from God. दर्द ने आपको प्रभु से दूर नहीं लेके जाना चाहिए। Rejection should not take you away from God. तिरस्कार ने आपको प्रभु से दूर नहीं लेके जाना You चाहिए। should run into the open arms of God. आपने प्रभु के खुली बाहों में दौड़ कर जाना चाहिए। Yeah. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Yeah, please write. लिख कर लीजिए। So when the seed dies, तो जब बीज मरता है, yeah, there's a closeness you develop with God. आप प्रभु के साथ एक करीबीपन को उत्पन्न करते हैं। Yeah. आप ट्राई करके देखो। जब दर्द होता है ना, एक तो आप दूर जा सकते हो प्रभु से, या आप सीधे प्रभु में घुस सकते हैं। आमीन। You can run into God. आप प्रभु के अंदर घुस सकते हैं। Yeah. And you begin to know God. और आप प्रभु को जानने लग सकते हो। और ये Moses was taking his sheep around here and there. मूसा अपने जो भेड़ बकरी उनको यहाँ वहाँ लेके जा रहा था। One day suddenly he saw the burning bush. एक दिन उसने जलती हुई झाड़ी देखी। वो नजदीक आया क्या भाग गया? नजदीक आया। आमीन। नजदीक। दुखों ने तुझे ना दूर नहीं लेके जाना है। तिरस्कार आदमी का जो है ना, उसने तुझे प्रभु से दूर नहीं लेके जाना है, लेकिन आपने नजदीक आना है, क्योंकि आप नजदीक आओगे तो प्रभु आपसे जरूर बात करने वाला है। आमीन। Come to the Lord. Come to the Lord. Come. प्रभु के नजदीक आ जाओ। Yeah. John 17:3 says, यूहन्ना 17:3 कहता है, Life is to know Jesus. जीवन यीशु को जानने के बारे में है। देखो, अगर आपको मर्सिडीज भी नहीं मिला ना तो चलेगा। Life is about knowing the Lord. तो जीवन प्रभु को जानने के बारे में। Philippians 3:10. फिलिपियो 3:10, I want to know the Lord. मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ। Anybody wants to know the Lord? कोई प्रभु को जानना चाहता है यहाँ? Yeah. तो बाजू वाले को बोलना तू गिरने वाला है और मरने भी वाला है। Yeah. I may know him. ताकि मैं उसे जानूं। Yeah. See, if you don't know a Mercedes, it's okay. यदि आप मर्सिडीज नहीं जानते तो भी ठीक है। क्या बोले बेटा? मर्सिडीज। मर्सिडीज नहीं जानते हो ना तो भी चलेगा। यानी अगर बाजू वाला बोलता क्या मर्सिडीज है, क्या मजा आता है, क्या अरे क्या है, और आप सोचते हो लेकिन फिर आपका समय आता यीशु तो बाजू वाला बोलता What do you want? आपको क्या चाहिए? 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 You decide आप निर्णय लो। what you want. आपको क्या चाहिए? I have decided. मैंने निर्णय ले लिया। I want to know Jesus. मैं यीशु को जानना I चाहता want to हूँ। know God. मैं प्रभु को जानना I want चाहता to हूँ। know the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा को जानना चाहता हूँ। This is life. यही जीवन है। So there is nothing wrong. You can have a Mercedes. There's no problem. तो उसमें कुछ गलत नहीं। आपके पास मर्सिडीज है, रखो। रख लो. You decide what you want. आप निर्णय लो, आपको क्या चाहिए? I have decided. मैंने निर्णय लिया I है। want to know Jesus. मैं यीशु को जानना चाहता हूँ। When there is a dying, जब मरना होता है, there is humility which comes in your life. तो आपके जीवन में नम्रता आती है। Namrata is not a gift. नम्रता भेंट नहीं है।
It's a character which God develops in your heart. वो एक चरित्र है जो प्रभु आपके हृदय में विकसित करते हैं। Yeah. अच्छा, कोई अगर समझो कोई बीमार होता है, एक व्यक्ति अगर बीमार हो गया और 30 दिन हॉस्पिटल में पड़ा है, और आप लोग सब प्रार्थना करते हो, प्रभु दया करते हो, उस पर बाहर लाते हो। अगले बार अगर वो सुनेगा ना कोई बीमार है, और अगर मैं बोलूंगा ना कोई जाएगा उसे मिलने, पता है पहला कौन जाएगा? ये जो, Yes. Amen. क्योंकि 30 दिन के अंदर प्रभु ने उसके अंदर कूट कूट के कुछ कर दिया है। आमेन, आमेन। इन द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा में गॉड प्रोड्यूसेस ह्यूमिलिटी इन योर हार्ट। आपके हृदय में प्रभु नम्रता को उत्पन्न करते हैं। करता है, बिकॉज फॉर फ्रूट टू कम ह्यूमिलिटी हैज टू बी देयर। क्योंकि फल आने के लिए नम्रता होनी जरूरी है। कैन आई हियर एन आमेन देयर? आमेन। अच्छा, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? नम्रता क्या है? टू बी मेड लो, नीचे बनाया जाना। नीचे बनाया नहीं बेटा, नीचे आना। आप यहां हो ना, आपको नीचे आना पड़ता। अच्छा, यीशु को नम्र बनाया गया? हाँ, बोलो बोलो, बना कितना बनाया गया? स्वर्ग छोड़कर आए नीचे। हेवन, ही लेफ्ट हेवन उन्होंने स्वर्ग छोड़ा एंड ही केम। और वो नीचे आए। एंड देन वेयर ही वेंट? फिर कहाँ गए? ही वाज हैंगिंग बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटक रहे थे ऑन द क्रॉस। कलवरी के क्रूस में। Then he went down, फिर नीचे गए। and on the third day, और तीसरे दिन like a lion now, सिंह के जैसे अभी he roared and he came out. वो गरज के बाहर आए। बड़ा बनकर छोटा बन सकते हो क्या आप? सोच के देखो। You answer this question. बड़ा बनकर आप छोटा बन सकते हो क्या? आप सोच के देखो। Becoming big and then becoming small. Is it possible? You think about it. बड़ा बनना उसके बाद छोटा बनना क्या है? संभव है? सोचो जरा। या सोच के देखो, क्योंकि बड़ा बनकर अगर आप छोटा बनोगे ना, तो प्रभु बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुझे इतना बड़ा बनाऊंगा कि लोग सोच भी नहीं सकता, तू सोच भी नहीं सकता, तू मांग भी नहीं सकता, मैं तुझे इतना बड़ा बना सकता हूं। How many of you know John the Baptist? कितने लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हैं? When he was born, जब उसका जन्म हुआ, his purpose was to prepare the coming of Jesus, उसका मकसद था यीशु के आने के लिए तैयारी करना। and he was giving baptism to everybody. और वो सभी को बपतिस्मा दे रहा था। And Jesus also got baptized in his ministry. और यीशु का भी बपतिस्मा उनकी सेवकाई में हुआ। But in John chapter 3, लेकिन यूहन्ना अध्याय 3 में verse 26, वचन 26, one day his disciple came to him एक दिन उसके शिष्य उसके पास आए and he said, you know that Jesus you baptized और वो कहने लगे, आप जानते हो वो जो यीशु जिसका तुमने बपतिस्मा किया and who you said is the lamp of God. और जिसके विषय में आपने कहा ये परमेश्वर का मेमना है। You know, now everybody is going to them. अभी सब उसके पास जा रहे हैं। हमारा दुकान खाली हो गया सर। मैंने बोल रहा है, जिसको आपने सिखाया बैप्टिज्म कैसा देना, आज सब लोग उसके पास जा रहे हैं और वो सबका बपतिस्मा कर रहा है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? सब उधर जा रहे हैं, इधर कोई आ ही नहीं रहा है, हम लोग खाली खड़े हैं। Big once upon a time. एक समय पे बड़ा शून्य बना। You want to hear his answer? आप उसका जवाब सुनना चाहते हो? अगर क्या होता ना, हम शायद हमारे पास 3 लाख का काम है और सडनली गया, तो हम इतना बैंड बजाते हैं ना, सारा दुनिया को बोलते 3 लाख का मेरा काम गया, 3 लाख का मेरा काम गया, 3 लाख का मेरा काम गया। 30वां वचन देखो, He must increase, उसने बढ़ना है, I must decrease. मैंने घटना है। Humility. नम्रता। जो नम्र रहते ना बहुत डेंजरस रहते। आमीन। आपको पता है महान कौन होने वाले स्वर्ग में? जिसके बाद सबसे बड़ा चर्च रहता वो नहीं, जिसके बाद सबसे ज्यादा कार होते वो नहीं, जिसके बाद सबसे ज्यादा सोना होता वो नहीं, लेकिन वो महान है जो एक बच्चे के जैसे नम्र होते हैं। आमीन। हाँ, बाजू वाले को बोलना थोड़ा मरना है।
हाँ, मरने के अंदर क्या होने वाला पता है? आप प्रभु के क्या होने वाले? क्लोज होने वाले। हाँ, शायद आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि 7 स्टार होटल में कैसा रहना है, शायद आपके पास नहीं है वो एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस होना है प्रभु का। एंड व्हेन देयर इज डेथ, और जब मृत्यु होती है देयर इज ह्यूमिलिटी। नम्रता आती है। हाँ। तीसरा, लास्ट, आखिरी, नाउ दैट सीड विल ब्रिंग फ्रूट। अभी वो बीज फल लाएगा। वो बीज फल लाएगा जो गिरा हुआ है, वो Amen. बीज फल लाएगा जो मरा हुआ है, आमेन, वही लाता है। आमेन। प्रभु के जीवन में जो फल आए ना, प्रभु यीशु के जीवन के कारण जो फल आए, समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। समझने की कोशिश करो। द मैक्सिमम फ्रूट, ज्यादातर फल, ज्यादातर नहीं, सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम फ्रूट, सबसे ज्यादा फल, इज इट बिकॉज ही प्रीच्ड? वो इसलिए आए कि उन्होंने प्रचार किया? इसलिए आया क्या कि उन्होंने सिखाया? इसलिए आया क्या कि उन्होंने चंगाइयां दी? इसलिए आया क्या कि उन्होंने छुटकारे दिए? इसलिए आया क्या उन्होंने बहुत भले काम किए? इसलिए आया क्या कि उन्होंने लाजरस को बाहर निकाला? या इसलिए आया कि वो खुद एक बीज बनकर मरे? आमेन, आमेन। अच्छा, सवाल अभी तक हुआ नहीं है। मैक्सिमम फ्रूट किसके कारण है? सबसे ज्यादा फल किसके कारण आए? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खुद एक बलिदान बने। आमेन, आमेन। लास्ट लाइन, आखिरी लाइन, यू वांट मैक्सिमम फ्रूट? आपको सबसे ज्यादा फल चाहिए? लिसन, सुनिए, यूर अ सीड, आप बीज हो। आपको गिरना ही पड़ने वाला है। आमेन, आपको गिरकर मृत्यु को गले लगा, आमेन, और अगर वो हुआ तो फिर फल आएगा। आमेन, आमेन। यूर विथ मी? आप मेरे साथ हो? Yes. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।